بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے ہم وہ عربی کے معلم کا جو 7واں سبق ہے مرکب اضافی، اس کی مشق حل کر رہے ہیں عربی میں ترجمہ کریں۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہم نے عربی کے الفاظ سے اس کا اردو ترجمہ کیا تھا۔ اب اردو کے جو الفاظ ہیں اس کی عربی ہمیں بنانی ہے۔ یہاں سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا والا جو ہے بکری کا دودھ۔ چلیں بھائی، اپنا عظما آپ بتائیے اس کی عربی کیسے بنے گی؟ حلیب الشاتی یا لبن الشاتی؟ زبردست، حلیب الشاتی یا پھر لبن الشاتی۔ جو آج کل کی جدید عربی ہے اس کے اندر حلیب کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے اور دونوں صحیح ہیں، صحیح ہے، لبن الشاتی یا پھر حلیب الشاتی۔ اچھا، اب آگے دوسرا والا لفظ جو ہے وہ گائے کا سر۔ تو ہمارے ساتھ دوسری اسٹوڈنٹ جو ہے وہ لبنہ ہے، آپ پڑھ دیجئے بھائی گائے کا سر بتائیں۔ گائے کا سر راس البقری، رأس البقری، ٹھیک ہے نا، کیا کہا؟ رأس البقری، بالکل صحیح عربی بنائی۔ کامران بھائی آپ پڑھتے ذرا تیسرا، ماں کی بولیے کیا بنا ہے؟ اطاعت الامی، اطاعت الف کو حمزہ کو زیر دینی ہے، اطاعت الامی ماں کی فرما برداری، یا پھر آپ کہیں گے اطاعت الوالدتی ماں کی فرما برداری، اطاعت الوالدتی۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگلا کیا دیکھ لیں، چوتھا اپنا عظما آپ پڑھ لیں۔ آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ سر کس کا نام لیا آپ نے؟ عظما آپ کو میں کہہ رہا ہوں، چوتھا آپ پڑھ لیں عظما۔ جی جی آپ ہی کو کہہ رہا ہوں۔ سر مالو زیدن۔ ہاں، زید کا مال ہے نا، مالو زیدن، بالکل صحیح عربی بنی۔ اچھا، کیا آپ نے یہاں پر ال کیوں نہیں لگایا؟ سر کیونکہ آلریڈی یہ معرفہ ہے۔ یہ آلریڈی معرفہ ہے، اس میں علم ہے، ماشاءاللہ، بالکل صحیح جواب۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اب جو ہے وہ اگلا ہے پانچواں، ہاتھی کا کان۔ لبنہ آپ بتا دیں۔ اذن الفیلی، شاباش، اذن الفیلی۔ کامران بھائی آپ پڑھیں اس طرح، جو نا ترتیب آپ پڑھتے جائیں۔ اب کامران بھائی کے بعد پھر عظما پڑھیں گی، پھر لبنہ، پھر کامران بھائی، اس طرح آپ پڑھتے ہیں۔ جی کامران بھائی۔ چاند کی روشنی، ہاں، نور القمر، نور القمری۔ دیکھیں انہوں نے کہا نور القمری، کیا کہا آپ نے؟ دوبارہ بولیں ذرا زور سے۔ کیا اس کی اور بھی کچھ عربی بن سکتی ہے بھائی نور القمر کے علاوہ؟ سر اس کی دو القمری۔ زوئی کہتے ہیں سر، یہ ہوئی نا بات، بالکل صحیح۔ دیکھیں دو عربی ہیں اس کی، نور القمری، یا پھر عربی میں کہتے ہیں ضوء القمری۔ بہت سعود میں نے غلطی سے لکھ دیا، تو اس کو کہتے ہیں ضوء القمری، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہو گیا اپنا چاند کی روشنی، اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اب اس کے بعد جو ہے ساتواں جو ہے اس پہ آ جائیں، اپنا عظما آپ پڑھ لیں۔ کیسے کہیں گے ہم؟ فل بیتی۔ اچھا، جب ہم کہیں گے فی کے بعد البیت لگائیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ ایک میں رکیے گا، اپنا یوں کہیں گے۔ دیکھیں آپ نے یہ کہا نا فل بیتی، ذیل لگا دیا آپ نے۔ اگر میں آپ کو کہوں فی کے بعد بیت کو ال نہیں لگائیں تو عربی کیسے بنائیں گی؟ آپ کیسے بولیں گی؟ بتا سکتی ہیں؟ نہیں سر یاد نہیں آ رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ال نہ لگائیں۔ یہ جو یہی لفظ ہے فل بیتی، سوال کو سمجھے، بہت آسان سوال کیا ہے میں نے۔ کہا فل بیتی میں بیت کے اوپر صرف ال نہیں لگائیں، اور ال کو ہٹا کر کے بولیں تو کیسے بولیں گی آپ؟ یہی لفظ ہے۔ فی بیتی۔ آپ مجھے آواز آئی فی بیتی، لیکن فی بیتی نہیں ہوگا، فی بیتن ہوگا، دو زیر آئے گی، دو زیر، فی بیتن، ٹھیک ہے نا، اس طرح ہوگا۔ سر اس کا بھی یہی ٹرانسلیشن ہوگا، فی بیتن کا بھی یہی ٹرانسلیشن ہوگا، گھر میں۔ ہاں بالکل، لیکن دیکھیں نا ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم ال لگا کے بولتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں فل بیتی، یہ والا پہلے والا، تو اس کا مطلب ہے مخصوص گھر میں، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر ہم کہتے ہیں فی بیتن تو اس کا مطلب ہے کسی بھی ایک گھر میں، وہ گھر ہمیں نہیں پتا، وہ نکرہ ہے، انجانا گھر ہے، ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے نا، اس طرح ہو جائے گا۔ تو فل بیتی اور فی بیتن، تو کسی بھی ایک گھر میں اور ایک خاص گھر میں، مخصوص گھر میں، یہ فرق ہوگا۔ اور پھر دو زیر آئے گی، اصل میں یہ جاننا چاہتا تھا، تو آپ نے صحیح بتایا فی بیتن کہ دو زیر ہم پڑھیں گے اس کو۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 8، بازار تک۔ جی السوقی، ہاں، الس کیا کہا آپ نے؟ السوقی، السوقی، بالکل صحیح کہا، سوق نہیں بولیں گے، سین کو پیش ہے، یہ ذہن میں رکھیں، السوقی، بازار تک، بالکل صحیح عربی بنائی۔ اور سوق جو ہے نا بازار، یہ عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ آگے آ جائیں، اللہ اور رسول کے واسطے، اسے کیسے کہیں گے کامران صاحب؟
लिल्लाहि यानी अल्लाह और उसके रसूल के लिए, वास्ते का मतलब है लिए, बस ये ध्यान में रखें। लिल्लाहि व रसूलिल्लाह। देखें ये भी याद रखें, लिल्लाही कैसे लिखते हैं अरबी में, ये लाम है ना, लाम, इसके बाद एक और लाम बढ़ाएं फिर यूं बनाएं लिल्लाही, और जब लिल्लाही कह रहे हैं तो वर रसूली अल लगा कर बोलें, क्योंकि अल्लाह इसमें अलम है खास है, रसूल को भी खास करें, वाव के पहले वाला बाद वाला एक जैसा रखें, ठीक है ना, लिल्लाही वर रसूली। अब अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि नहीं भाई मैं यूं बनाना चाहता हूं अरबी, या चाहती हूं लिल्लाही और फिर यूं वलिर रसूली, तो ये भी सही है अरबी। अगर कोई यूं कहता है ना लिल्लाही वर रसूली, तो तर्जुमा हो जाएगा अल्लाह और रसूल के लिए, और अगर कोई कहता है लिल्लाही वलिर रसूली, लाम को 2 मरतबा लाता है, तो इसका मतलब हो जाएगा अल्लाह के लिए और रसूल के लिए, तो अरबी सही है, बात गलत नहीं, लेकिन आएगी जेर, लिल्लाही वर रसूली, लिल्लाही वलिर रसूली जेर आएगी। अब इसके बाद जो है वो उसमें आप दोबारा पढ़ दें, सर आंखों पर, सर और आंख पर। अला रासी व आईनी। देखें अब जब आपने कहा ना अला, तो फिर आप यूं कहें अला रासिन व आइनिन, और अल लगाएंगी तो आप कहेंगे अला रासी वल आइनी। सही अरबी बनाई आपने, दोनों तरह कह सकते हैं। मैंने कहा ना अल नहीं लगाएंगे तो फिर वो नकेरा हो जाएगा, अल लगाएंगे तो मारफा हो जाएगा और एक जेर आएगी, और अल नहीं होगा तो 2 जेर आ जाएगी। लड़के का नाम हामिद है, ये पूरा जुमला नंबर है। 9, तो नंबर 9 एक बार कंफर्म करेंगे क्या ट्रांसलेशन होगा इसका सही? वो आपका मिस हो गया था, क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा हाँ, इसका मैंने ये बताया अल्लाह और रसूल के वास्ते, इसका मतलब है अल्लाह और रसूल के लिए, तो हम इसकी अरबी बनाएंगे लिल्लाही, लिल्लाही वर रसूली, तो इसका तर्जुमा होगा अल्लाह और रसूल के लिए। और अगर हम चाहें कि लाम को 2 जगह लगा दें, हम यूं बोले लिल्लाही व लिर रसूली, तो ये भी सही है, अल्लाह के लिए और रसूल के लिए, यूं तर्जुमा बन जाए। तो लाम 2 जगह लगाएं या 1 जगह लगाएं, बहरहाल आएगी दोनों जगह जेर, ये मैंने बताया। तो इसका तर्जुमा हो गया अल्लाह और रसूल के लिए। तो पुरानी उर्दू में कहते थे अल्लाह रसूल के वास्ते, आज भी कह देते हैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, ठीक है ना, अल्लाह रसूल का वास्ता है कह देते हैं सना लोग, तो ये वास्ता ही है, तो ये के लिए वाली अरबी बनेगी, लाम दे ली वाली बनेगी। अब आ गया पॉइंट नंबर 11, लड़के का नाम हामिद है, कैसे कहेंगे? इसकी अरबी किसकी बारी है, अब कौन बनाएगा ये? सर मैं। हाँ बताएं। इस्मुल वलदी हामिदुन। अच्छा एक मिनट, दोबारा मैं लिख रहा हूँ, इस्मु, ये ले मैं एराब भी लगा रहा हूँ। आगे क्या कहा आपने? इस्मुल वलदी, इस्मुल वलदी, शाबाश। आगे हामिदुन। हामिदुन, बहुत ही दुरुस्त अरबी बनाई है, आपने भी यही बनाई होगी। कामरान भाई भी बोल रहे थे मैं बनाता हूँ, तो माशाल्लाह सही बनाया आपने। चले, इस्मुल वलदी हामिदुन, ये मैं 2 पेज लिखता हूँ लेकिन ये शो नहीं हो रहा था, तो बहरहाल ये दूसरा भी पेज है, हामिदुन ही हामिदुन है, आपने सही कहा है। अब इसके बाद जो है वो कामरान भाई आप बताएं, वो घर जा रहे हैं, क्योंकि ये इसमें फेल इस्तेमाल हो रहा है, उधर जा रहे हैं, तो हम यसअलूना इलल बैत। देखें ये भी है, लेकिन अभी भी आपने वो लब पढ़ा हुआ है। देखें जाने वाले को अरबी में कहते हैं जाहिब, ठीक है ना, जाहिब। अब क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है वो घर जा रहे हैं जमा है, तो सबसे पहले तो वो की अरबी बनाया हुम, आपने हुआ हुमा हुम जो पढ़ा था, हमें यूं सोचना हुम। उसके बाद आपने बोलना है जाहिबूना, वो जा रहे हैं, हुम जाहिबूना, जाहिब के आगे ऊना लगा दे, जमा बन गया, ठीक है ना, हुम जाहिबूना, वो जा रहे हैं। अब कहाँ जा रहे हैं भाई? इलल बैती, हुम जाहिबूना इलल बैती, वो भी सही है, लेकिन अभी फेल पढ़ा नहीं है ना, तो हम तो वो देखें ना, वो बात करें ना स्टूडेंट के सामने जो चीज़ उसे पढ़ी हुई। हुम सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम होता है हमारे यहाँ, तो इसका उसके लेवल में आप बात करेंगे, वो आस्ते आस्ते खुद ही अपडेट होता है कि इंसान को बढ़ जाए, बिला वजह हम उसको मुश्किल करें फिर वजाहते करें ना। तो ये अरबी के है ना ऑप्शन, तो इसको बनाएं, हुम जाहिबूना इलल बैती, वो घर जा रहे हैं, यानी वो घर की तरफ जा रहे हैं, अरब यूँ कहते हैं। और जाहिब के बाद जो है ना आगे आ रहा है इला, ये इला अरबी का स्टाइल है कि जब भी ज़हाबा यज़हबू जाहिब आता है ना, तो इसके साथ इला लगाते हैं, वो घर की तरफ जा रहे हैं, अरब यूँ कहते हैं। तो ये अरबी स्टाइल की वजह से इस इला को रखना पड़ेगा, ठीक है, हुम जाहिबूना इलल बैती। अब इसके बाद आगे चलिए, अगला है हम मस्जिद में बैठे हुए हैं, तो बैठे हुए के लिए 2 लफ्ज़ हमने पढ़े थे पीछे, अब ये किसकी बारी है? उस्मा आप कोशिश कर सकती हैं जी। नहनु जालिसुन फिल मस्जिदी। अब देखें आपने कहा नहनु, उसके बाद आपने कहा जालिसुन। अब मुझे बताएं नहनु जो है वो सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल है ना, प्लूरल है ना, तो इसके लिए जालिसूना हम लगा देंगे, जमा बना देंगे ना, हमने तो पढ़ा हुआ है वाहिद तस्निया जमा, तो नहनु जालिसूना। वरना अगर हम यूँ कहेंगे नहनु जालिसून, तो इसका माना हो जाएगा हम सब एक बैठा हुआ है, क्योंकि 40 का माना एक बैठा हुआ आदमी, तो नहनु, तो वो फिर वो मुब्तदा और खबर में बराबरी नहीं रहेगी। नहनु जालिसूना,
हम सब बैठे हुए हैं, ये तर्जुमा हो गया। कहाँ बैठे हुए हैं अब आप आगे बताएं, अरबी बोलें। फिल मस्जिद, फिल क्या कहा? मस्जिदी। फिल मस्जिदी। जबरदस्त भाई, आप लोग तो बड़े जबरदस्त बता रहे हैं। सही है माशाल्लाह, सही आ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद है पॉइंट नंबर 14, इसको भी बता दें। अब ये जो है लुबना आपकी बारी है, जी पढ़िए। सर लबनुल शाती लिल बिनती। लबनुशाती, फिर आपने कहा लिल बिनती। देखें लिखने को भी देख लें किस तरह लिखते हैं, बिल्कुल सही अरबी बनाए। देखें लबनुशाती का मतलब ये मुरक्कब इजाफी अलग हो गया, बकरी का दूध। लड़की के वास्ते है या लड़की के लिए तो लाम जेल लिया आएगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, तो लिल बिनती करके हम बना देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हलीबुशाती भी कह सकते हैं, जैसा कि उस्मान ने बताया था, है ना, हलीबुशाती यूं भी कह सकते हैं, तो सही है यार भी। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 15। कामरान साहब, रसूल की फर्मा बरदारी में अल्लाह की फर्मा बरदारी है, तो सबसे पहले में से शुरू कर दें, में, क्योंकि अरबी में ये पहले आते हैं ना, में पर ये पहले आते हैं, इलल मस्जिद अलल मस्जिद, इस तरह। तो रसूल की फर्मा बरदारी में अल्लाह की फर्मा बरदारी। और जिस भी तरह आपने बनाया हो ना, पढ़ के सुना दीजिएगा, परेशान नहीं हो सकता, आपने सही ऑप्शन बनाया हो। एक जुमले के कई स्टाइल होते हैं अरबी में, कि यूं भी कहा जा सकता है, यूं भी कहा जा सकता है, यूं भी कहा जा सकता है। जी अच्छा, जोर से बोले जरा कामरान साहब। फी, देखें कामरान भाई ने कहा फी इताअतुर रसूली, सही कहा है। इताअतु को पेश लगाई है इन्होंने कहा फी इताअतुर रसूली, सही है ये। सर फी के साथ तो फिर जेर आएगा ना, फी के साथ तो जेर आएगा ना कामरान भाई, यानी फी के बाद आपने क्या लिखा है? मैंने तो ये जो है आपने फी का मैंने जुमला जो बनाया वो बताया इताअतुर रसूली फी अल्लाह, यूं नहीं बनेगा। अच्छा चलें, और कोई बता सकता है आप में से कैसे अरबी बनेगी? अल्लाह रसूल की फर्मा बरदारी में अल्लाह की फर्मा बरदारी है, जैसे भी आपने बनाया वो सुना दे, मसला नहीं। हाँ भाई, अपना लुबना या उल्मा, आप दोनों में से कोई भी एक बता दे, बता सकते हैं? सर मुश्किल है। फी अताअतुल्लाही, आपने कहा फी इताअतिल्लाही। अताअतिल्लाही। देखिए सबसे पहले उर्दू में गौर किया जाता है, ये मैं मिठा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले जो गौर किया जाता है, हम जो गौर करते हैं वो उर्दू के अंदर गौर करते हैं कि ये कैसे बनेगा, ठीक है। अब मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, रसूल की फर्मा बरदारी में अल्लाह की फर्मा बरदारी है, तो अब इसके दो अंदाजे अरबी बनाने के। सबसे पहले हम कहेंगे फी इताअतिर रसूली, तो इसका तर्जुमा देखें आप, बन रहा है कि नहीं बन रहा? रसूल की फर्मा बरदारी में, बन तो गया ना, फी का माना में, इसका उल्टा तर्जुमा करें रसूल की फर्मा बरदारी में। अब क्या है? अल्लाह की फर्मा बरदारी है, तो हम कहेंगे इताअतुल्लाही, ये बन गया फी इताअतिर रसूली इताअतुल्लाह। अब अगर कामरान साहब कहते हैं कि जी मैंने तो इताअतुल्लाह को पहले कर दिया, तो इताअतुल्लाह पहले आ सकता है, लेकिन आपने यहाँ क्या लिखा हुआ? इताअतुर रसूल पहले। उर्दू को देखें ना क्या लिखा हुआ है, रसूल की फर्मा बरदारी में अल्लाह की फर्मा बरदारी है, ठीक है ना। तो इताअतुल्लाह पहले भी जा सकता है, इताअतुल्लाही फी इताअतिर रसूल, या फिर हम कहेंगे फी इताअतिर रसूल इताअतुल्लाह। इसको पढ़ लें एक मरतबा, रीड कर लें जरा, रीड करके सुना दें कैसे पढ़ेंगे इसको, क्या लिखा हुआ है ये? इताअतुल्लाह, ये जुमला बन गया आपके सामने। अब इसके बाद हम मजीद आगे बढ़ते हैं और इसी तरह इसको हम समझते जाते हैं। अब देखें सबसे इसके बाद जो आने वाला जुमला है वो है ये, आयशा बिन्ते अबी बकर मोहम्मद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं। अब सबसे पहले नोट कर लें कि आयशा जो है ना ये मौसूफ है, मुब्तदा है, और ना अरबी भी बना के आसानी के लिए बता दी कि आयशा तू बोलना, एक पेश लगाना, क्योंकि अरबी में आयशा उन लफ्ज़ों में से जिसको दो पेश नहीं आती, ऐसे लफ्ज़ों को अरबी में कहते हैं गैर मुनसरिफ। तो आयशा है, आयशा बिन्त अबू बकर, ये जो बिन्ते अबू बकर है ना ये सिफत है, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौसूफ है, फिर रसूल खुदा इनकी सिफत है, फिर उनकी बीवी है। तो जो है इसकी अरबी भी बड़ी सोच के बनाई जाएगी। तो अब आप में से किसकी बारी है भाई? उस्मा आपकी बारी आ रही है, आप पढ़ लें जी। सर इसका होगा आयशा बिन्तु अबी बकर रज़ी एक मिनट अल्लाह रुक जाए, मैं ताला लिखता भी अन्हा। जाता हूँ ना जरा। हाँ सही बता रही है माशाल्लाह, आयशा तू, ये ले। उसके बाद क्या कहा आपने? आयशा बिन्तु अबी बकर अब रज़ी बिंतु अल्लाह हो ताला जाएगा, बिंतु के बाद अभी अबी बकर
अबी बकरिन, ठीक है ना, ये हो जाएगा आयशतु बिन्तु अबी बकर। आगे रज़ियल्लाहु अन्हु हिया ज़ौजतु रसूलुल्लाह, हाँ, आपने क्या कहा, दोबारा बोले आगे। सही सही सही, हिया हाँ हिया सही है, हिया। ज़ौजतु रसूलुल्लाह। जबरदस्त भाई, हिया ज़ौजतु, बस एक चीज बढ़ा दें, यूं कहते हैं हिया ज़ौजतु मुहम्मदिन, मुहम्मदिन किया, फिर आगे हमने बोल दिया रसूलिल्लाह, क्योंकि उर्दू ट्रांसलेशन के अंदर लिखा हुआ है मुहम्मदिन, मोहम्मद रसूल खुदा की ज़ौजा है ना, तो हम इसको बढ़ा देंगे मुहम्मदिन रसूलिल्लाह। बाकी आपकी अरबी सही है माशाल्लाह, और बहुत अच्छे अंदाज में आपने अरबी बनाई। अब ये मैं आपके सामने मैंने इसको सेव कर दिया कि आइशतु बिन्तु अबी बकरिन हिया ज़ौजतु मुहम्मदिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये क्यों किया हमने, ये इससे किया, इसके ऐसे अरब इसलिए लगाए कि आयशा तो मौसूफ भी है, तो बिंतु को वही अरब आएंगे जो आयशा को हैं। फिर अबी बकर मुदाफ़ुन इलैह हो गया, फिर हिया ज़ौजा, हिया ना भी लगाएं और डायरेक्ट भी लिखते हैं आयशा तो बिंतु अबी बकर ज़ौजतु मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो भी जुमला सही है, और हिया लगा देंगे तो भी सही है, ठीक है ना। तो ज़ौजा जो है ना ये मुदाफ़ हो रहा है, तो इसको आएगी एक पेश, ठीक है, ज़ौजतु मुहम्मदिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा, अब जो है वो, हाँ, तो ये देखें इन्होंने माशाल्लाह कितने अच्छे अंदाज में अरबी बनाई। देखें ना, थोड़ी मेहनत हो तो बहुत अच्छा एक रिजल्ट आ सकता है अल्हम्दुलिल्लाह, पर हम मेहनत नहीं करते, सीरियस नहीं होते पढ़ने में। अच्छा, अब ये है आइशतु बिन्तु अबी बकरिन, अगर हिया ना भी होता तो ज़ौजतु मुहम्मदिन, फिर मोहम्मद की आगे सिफत है रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल सही अरबी है ये। अब हिया लगाए नहीं लगाए मसला नहीं है, और हिया लगा दें तो भी बहुत अच्छी अरबी है, बल्कि बेहतर है, इससे मजीद जोर पैदा हो जाएगा। अब इसके बाद है पॉइंट नंबर 17, लुबना आप बना दीजिए इसकी अरबी। हुवल वला वला हुवल हुवल वलादी वलादी अमीरिन। लेकिन सबसे पहले तो हुआ को आप जो है ना अलग समझ लें कि हुआ यहाँ लिखा हुआ नहीं है, हुआ लिख के भूल जाए हुआ। अब आप मुरक्कब इजाफी की अरबी बनाएं, अमीर का लड़का, वो अमीर का लड़का है, तो अमीर का लड़का जो है, तो मुदाफ को हम आमतौर पर क्या देते हैं, एक पेज देते हैं, एक पेज देते हैं ना आमतौर पर मुदाफ को, हुआ के बाद वलादुल अमीरी। हाँ, हुआ वलदुल अमीरी, वो अमीर का लड़का है, ये बन गया। अच्छा, अब ये अमीर से मुराद अगर बादशाह या हाकिम है किसी जगह का, तो वो अमीर है या शहजादा है, ठीक है ना। और जैसे हम बोलते हैं ना मालदार दौलतमंद आदमी अमीर, तो उसको अरबी में बोलते हैं गनी या फिर सरी, ये भी कह सकते हैं, हुआ वलदुल गनी या फिर हुआ वलदुल सरी, ये लब नोट कर लें, सारा या के साथ सीन के साथ नहीं, सरी देखें ऐसे लिखें, हुआ वलदुल गनी या फिर हुआ वलदुल सरी या फिर हुआ वलदुल अमीरी। तो हुआ रजुलुन सरी, रजुलुन सरी यानी बड़ा मालदार आदमी, इम्राअतुन सरियतुन मालदार औरत, ठीक है ना, गनीयुन गनीयतुन, इस तरह ये सारे लफ्ज़ आते हैं अरबी में, तो कोई भी एक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ गया जालिम बादशाह पर अल्लाह का गज़ब है। जी कामरान भाई, अब आप सोचे ना, देखे ना, अब देखिए इसको टुकड़ों में अलग अलग करा करें आप लोग। जालिम बादशाह पर, तो जालिम बादशाह मौसूफ सिफत है और पर आ रहा है, तो पर सबसे पहले आएगा, फिर बादशाह आएगा, फिर जालिम आएगी अरबी, फिर अल्लाह का गज़ब, ये अलग मुरक्कब इज़ाफ़ी है, इसको अलग से यूं तरतीब दे दे तो बन जाएगी। सोच कर नहीं नहीं, अला, अगर आपने अला को अल्लाह के गज़ब के साथ लगा दिया तो अल्लाह के गज़ब पर तर्जुमा हो जाएगा, अल्लाह गज़ब बिल्लाह। इस चीज को सोचा करें कि ये पर कहाँ जाएगा, नहीं, यही तो गलती है, सुल्तान व जालिम इस तरह थोड़ी, यहाँ लिखा हुआ जालिम बादशाह पर, मैंने क्या कहा, पर की पहले अरबी बनेगी अल्लाह। हाँ, अच्छा, आप दोनों में से कोई बता सकता है भाई, सही में आ रहा है जालिम बादशाह पर अल्लाह का गज़ब है, लुबना या उज़मा, आप दोनों में से नहीं आ रहा? नहीं सर, नहीं। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हैं कामरान भाई, जोर से बोलें जरा। एक मिनट में लिख रहा हूँ, एक मिनट। गज़बुल्लाहु क्यों कह रहे हैं भाई, ये तो मुदाफ़ुन इलैह नहीं है, गज़बु मुदाफ़ है, एक पेश आ गया, गज़बुल्लाही। अब आप आगे चले, सही आ गया, हाँ, अला सुल्तान ज़ालिम। अब देखें बोलने में कितनी सारी आपको मिस्टेक क्या हो रही है कि अला सुल्तान आपने लिखा ना, याद है मैं लिख रहा हूँ अला सुल्तान हो गया, तो जब आपने सुल्तान के ऊपर अली लगाया तो अला सुल्तान ज़ालिम क्यों कह रहे हैं, अला सुल्तान ज़ालिमिन क्यों कर दें, ठीक है ना। गज़बुल्लाही अला सुल्तान ज़ालिमिन, ये अरबी बन गई।
اچھا اور ایک اور عربی اس طرح بھی اس کی بن سکتی ہے اگر ال لگا کے بنائیں گے, ٹھیک ہے نا, نہیں ہاں تو پھر دونوں پہ ال لگا دیں, ٹھیک ہے نا. آپ یا تو یوں بول دیں مثال کے طور پر, آپ یوں عربی بنا سکتے ہیں غضب اللہ علی سلطان, پھر ہو جائے گا ظالمی, یہ ہو گیا. اچھا آپ ایک اور بات دیکھیں, غضب اللہ علی سلطان الظالمی ہو گیا, غضب اللہ علی سلطان ظالمین ہو گیا. اور اگر آپ علی والے کو پہلے لے جائیں جو میں بار بار آپ کو بول رہا تھا, تو آپ یوں بھی عربی بنا سکتے تھے کہ علی السلطان الظالمی غضب اللہ, یا پھر علی سلطان الظالمین غضب اللہ, یوں بھی. لیکن غضب اللہ پہ علی نہیں آیا. اس چیز کی تھوڑی سی سمجھ رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر کے پڑھیں. تو اب امید ہے کہ یہ کچھ سمجھ میں آیا ہوگا. غضب اللہ پڑھ کے بتائیں کامران بھائی دوبارہ اس کو. غضب اللہ علی السلطان الظالم, یہ تو ال والا ہو گیا, بغیر ال والا غضب اللہ, غضب اللہ علی سلطان الظالمین, ہاں علی سلطان ظالمین, یہ ہو گیا. اچھا اب اس کے بعد ہے پوائنٹ نمبر 19, اس کے پر ہم آتے ہیں. اب جو ہے وہ کیا ہے, جاہل عالم کے جیسا نہیں ہے, جاہل عالم کے برابر نہیں ہے. اس کے نا کاف ہم نے پڑھا تھا, کا جیسا, تو اس کو لگانا ہے ہمیں. جاہل عالم کے جیسا نہیں. اس کی عربی آپ عظما اب آپ کوشش کریں, کس کی باری تھی, عظما کی ہے میرا خیال. پڑھیں اگر آپ کو نہیں آ رہا ہوگا لیسل, جی جی بولیں بولیں, کیا کہا آپ نے, بولیں دوبارہ. ہاں لیسل جاہل کالعالم, ماشاء اللہ بالکل صحیح ہے. لیس الجاہل, اس طرح چلتے رہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, تو آپ لوگوں کو کافی پھر آگے اپڈیٹ ہوتے رہیں گے. ایک منٹ, یہ کاف کا جاتا ہے بار بار. ہاں کل عالمی, یہ ہوئی نا بات. اب اس کا ترجمہ ہو گیا لیس الجاہل کل عالمی, کیونکہ ہم نے منفی جملے میں آپ کو ہم نے پڑھا تھا کہ لیسا یہاں لگا دیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں مل جاہل کل عالمی, یا لیسا کی جگہ ماں بھی لگ سکتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, ٹھیک ہے نا. یہاں پر ماں بھی آ سکتا ہے عربی میں, بس یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ لیسا کی جگہ اگر ہم چاہیں تو ماں بھی لگا دیں. لیس الجاہل کل عالمی یا پھر مل جاہل کل عالمی, جاہلین بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ بھی آپ کی بات یاد رکھیں کہ ابھی انہوں نے جو جیسی اردو لکھی ہے نا, ہم کو ویسی عربی بنانی ہے. ابھی اردو میں انہوں نے کیا لکھا ہے کہ جاہل عالم کے جیسا نہیں ہے. جب انہوں نے جیسے کا لفظ کہہ دیا تو اب ہمیں با لگانے کی یہاں ضرورت نہیں ہے. اور یہ بھی بات یاد رکھیں, لیسا اور جو ماں ہوتا ہے اس کی خبر کے ساتھ جو با آتی ہے تو اس کا موقع بھی تو آ رہا ہو. جب وہ سمپل سینٹنس ہو, جو نیگیٹو سمپل سینٹنس ہو, تو پھر بات کیا مطلب ہے اس کا کہ ایک مثبت یعنی وہ ایک سادہ منفی جملہ ہو تو اس کے نہ با آتی ہے. مثال کے طور پر یہ جملہ یوں ہوتا نا, اگر لبنا آپ غور کریے گا میری بات پر, تو پھر با آ جاتی. میں کہتا جاہل موجود نہیں ہے, جی اگر میں یہ کہتا نا جاہل موجود نہیں ہے, تو پھر ہم یوں بھی بناتے لیس الجاہل بی حاضرن, جاہل موجود نہیں ہے, حاضر نہیں ہے. لیس الجاہل بی حاضرن, جاہل موجود نہیں ہے. اچھا جاہل عالم نہیں ہے, تو لیس الجاہل بی عالم جب آتا. جب یہاں انہوں نے کہہ یہ دیا کہ جاہل عالم کے جیسا نہیں ہے, تو پھر کیا لگے گا. مطلب یہ ہے کہ لیسا اور ماں کے ساتھ جو با آتی ہے تو وہ ایسا کمپلسری نہیں ہے کہ ہر حال میں آپ زبردستی ہمیں ماں لگا کے رکھیں. وہ سمپل یعنی وہ سینٹینس کو دیکھا جاتا ہے کس بات میں. جیسے نارمل جب کسی سینٹینس کو آپ نگیٹ کرتے ہیں, اس کو نیگیٹو کر دیتے ہیں, اس کی نفی کرتے ہیں, تو پھر اس وقت پھر ہم با لگاتے ہیں. جیسے میں نے کہا جاہل موجود نہیں ہے, جاہل سو نہیں رہا ہے, جاہل جا نہیں رہا ہے. لیس الجاہل بی ذاہب, جا نہیں رہا ہے. لیس الجاہل بی عالم, جاہل عالم نہیں ہے. اگر یوں جملہ ہوتا تو بات ہی. اب جب انہوں نے یہاں یوں کہا ہے کہ جاہل عالم کی طرح نہیں ہے, جیسا نہیں ہے, تو پھر یہی چلے گا جو اوپر والا ہم نے بتایا کہا جائے گا. اور ماں بھی آ سکتا ہے, مل جاہل بی حاضر, یہ ہو گیا. اب پوائنٹ نمبر 20, لبنا آپ کی باری ہے, اس کی آپ عربی بنائیے. خوشبو لڑکے کے لیے نہیں ہے. سر خوشبو کو کیا کہتے ہیں, طیب یا خوشبو کو جو نا عربی میں, خوشبو کے لیے عربی میں طیب استعمال ہوتا ہے. جو طیب ہے نا لفظ, بس اس توئیں کو زیر دے دیں یا کو ساکن کر دیں, طیب. ہاں تو اب آپ کیسے عربی شروع کریں گی؟ سر لیسا سے شروع کریں گی. چلے ہم آپ کی مدد کرتے ہیں, لیسا سے اسٹارٹ کریں. ہاں لیسا, لیسا طیب. اب دیکھیں نا, لیسا کے بعد کیا آئے گا, مبتدا آئے گا. تو مبتدا کو ال لگاتے ہیں نا, مبتدا تو معرفہ ہوتا ہے.
तो लैसत तीबू ये हो गया, ये मुब्तदा बन गया। देखें लैसत तीबू। तीबू। अब आगे आप वही बनाते हैं, लड़के के लिए नहीं है, लड़के के वास्ते नहीं है, तो उसके लिए क्या अरबी होती है? तो लिल वलदी। बस ये अरबी बन गई। देखा आपने, लैसत तीबू लिल वलदी, खुशबू नहीं है लड़के के लिए, लड़के के लिए खुशबू नहीं है। और लैसल इत्रू भी कह सकते हैं यहाँ, यानी अरबी जबान में जो इतर जो ना, ये अरबी का लफ्ज है, आइन तो और रॉ, लैसल इत्रू लिल वलद, खुशबू लड़के के लिए नहीं, यूँ भी कह सकते थे हम। तो तीब की जगह हम इतर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे आ जाएं, आगे चलिए। अच्छा कामरान साहब आपकी बारी है, पॉइंट नंबर 21 और उर्दू से अरबी वाली मशक़ मुकम्मल हो जाएगी। वो हामिद के लड़के की लड़की है। अब इसके ना थोड़ा सा सबसे पहले वो के लिए क्या अरबी है? हुआ। अब इसको आप समझेंगे, भूल जाएं या भी नहीं है। अब डायरेक्ट अरबी शुरू करनी है, हामिद के लड़के की लड़की, ये का के की वाला सिखाया था, तो बिल्कुल उल्टी अरबी बनती है। सबसे पहले किसकी बनेगी उर्दू में? उर्दू बताएं, उर्दू में लड़की की बनेगी। तो लड़की की अब अरबी क्या बोले? बिंतु। अच्छा अब आप जरा देखें, आपने कहा हुआ बिंतु, क्योंकि आपने वो देखा ना, आपने क्या देखा था? वो। अब ये वो रेफर किसको कर रहा है? लड़के को कर रहा है, लड़की को कर रहा है? ये लड़की के लिए कर रहा है ना, है ना? तो अब आपने हुआ लगाना था कि हिया। तो इस तरीके से हम पकड़ते हैं कि यहाँ पर इस उर्दू के वो का तर्जुमा हुआ होगा कि हिया होगा, क्योंकि बात ही लड़की की कर रहे हैं, तो अब हिया करते हैं बस इसका हिया। अब उसके बाद आगे चलें, हिया बिंतु और आगे क्या है? वलदी और आगे क्या है? हामिदिन। अच्छा अब मैं आपसे सवाल करूंगा, आपने वलद पर अल क्यों नहीं लगाया? ये हामिद की तरफ जा रहा है, हामिद तो खुद जो है ना वो ये आगे फिर मुदाफ हो रहा है। तो हमने ये पहले ही कायदा पढ़ा हुआ है कि शुरू का मुदाफ उस पर अल नहीं आता, दरमियाने जितने भी लफ्ज़ हैं अल नहीं आएगा, और आखिरी को अल आ सकता है, लेकिन क्योंकि हामिद इसमें अलम है, वो ऑलरेडी जो है वो प्रॉपर नाउन है, तो उसको हमें जरूरत नहीं है देने की, ठीक है ना? हिया बिंतु वलदी हामिदिन, वो हामिद के लड़के की लड़की है, हामिद के लड़के की लड़की है, तो बन गया ना। तो इस तरह हम पकड़ते हैं कि हम हुआ लगाएं कि हिया लगाएं, किसकी बात हो रही है, इस तरह सोचा जाता है, थोड़ा सा जुमलों को तरतीब दिया जाता है, फिर ये सारा काम ये हो गया आपके सामने। अब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ताला जब ये मशक़ मुकम्मल हो गई, तो मेरा ख्याल है आज हम इस पर रुकते हैं, और जो सवालात जवाबात हैं मैं ये चाहूँगा कि आप सब स्टूडेंट्स जो है, मतलब यही जो भी 3-4 या जो भी अब आज नहीं आए, 1-2 स्टूडेंट नहीं भी हैं, तो कुछ सुस्ती कर रहे हैं, उनके पेपर चल रहे हैं, तो उसके बाद वो बाज़ स्टूडेंट के अभी भी ऐसा है कि पेपर है जो मुझसे राब्ते में हैं और बात सुस्ती कर रहे हैं। तो ये देखें सवालात जवाबात जो है ना, फिर नेक्स्ट मशक़ के अंदर आप सबको करके आना है। मैं इस रिकॉर्डिंग को इस पर रोक रहा हूँ, इसके बाद हम थोड़ी सी अरबी कन्वर्सेशन पढ़ेंगे, तो इसी तरह क्लास में शामिल रहें, क्योंकि वो जो कन्वर्सेशन होती है ना, उसको देखें बाज़ स्टूडेंट समझ होते हैं ये गैर अहम है, वो भाई जो आप कवाइद पढ़ते हैं ना, उसको अप्लाई उसी में किया जाता है। कन्वर्सेशन में आप किसी भी लैंग्वेज की कन्वर्सेशन करेंगे तो आप उसको उन रूल्स को अप्लाई कर रहे हैं ना, जब भी तो आपकी अरबिक अच्छी होगी, तो उसका फ़ायदा है, वो बहुत फ़ायदे हैं उसके। चलें, वमा अलैना इल्लल बलाग।